Good morning, students. We have already started the chapter solution, and we have already discussed about the solution, introduction of solution, types of solution, and some part of the method by which we can express the concentrations of solution, in which mass percentage, volume percentage, mass upon volume percentage, molarity we have already discussed. But today we are going to start molarity. Molarity. It is represented by small m. Molarity is defined as number of moles of solute dissolving per kg of solvent called molarity. Here per kg of solvent is given, and in rest part, that means in molarity we have seen the number of moles of solute dissolving per kg of solution is there, but here number of moles of solute dissolving per kg of solvent. The formula of molarity is number of moles को हम क्या लिख सकते हैं, WB means weight of solute upon molecular mass of solute here into weight of solvent in, अगर हम ग्राम करते हैं तो we have to multiply by 1000. This is the formula of molarity. Means unit क्या हो जाएगी, number of moles per kg of solvent, mole per kg of solvent. In 11th class, we have already discussed the difference between the molarity and molality. Molality is independent upon temperature. Molality is independent upon temperature. Why it is so? Because here the mass of solvent is given, and we know that temperature do not depends upon the mass. But on the other hand, in molarity that we have discussed earlier, molarity यहाँ क्या था, number of moles dissolving per kg of solution in किसमें था, in liter. Means volume is means temperature depends. We can say volume of solution depend upon the temperature. That's why molarity depends, means it depends upon temperature. क्यों वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर. दैट्स व्हाई मोलारिटी चेंजेस. हाउ इट इज चेंजेस, ये फिर कैसे चेंज करता है. अब देखो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, मींस वॉल्यूम बढ़ेगा, मींस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलारिटी क्या होगी, कम होगी. मींस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मोलारिटी कैपिटल M इज डिक्रीजेस. ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, किसके, टेम्परेचर के इंक्रीज करने. ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर इज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट. मींस दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द मोलारिटी एंड मोलारिटी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज mole fraction. Mole fraction, it is represented by X, and it is a ratio of number of moles of one component to total number of moles of component. कैसे इसको डिफाइन करते हैं, number of mole of one component to number of, it is a ratio of, it is ratio of number of, it is a ratio of number of moles of one component to total number of moles, total number of moles of components in solution called, अब इसी को हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन.
जैसे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के लिए अगर हम करें तो बी यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन का सिंबल ये है बी फॉर सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये एन बी क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्वेंट। अब इससे हम लोग मोल फ्रैक्शंस को निकाल सकते हैं। यानी अब फार्मूला अगर ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मोल्स को क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि रेशियो है, इसमें क्या कह सकते हैं, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी है। और फ्रैक्शन है, इसलिए ये हमेशा 1 से क्या होगा, कम आता है। और सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल components is always equals to 1। जैसे एक कंपोनेंट सोल्यूशन में A है, दूसरा B है, तीन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर यहां 3 कंपोनेंट होते, सपोज टर्नरी सोल्यूशन होता, ये तो बाइनरी सोल्यूशन है, मींस 2 कंपोनेंट है। टर्नरी होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मींस जितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, अगर हम ज्यादा रख लें A प्लस B मोल फ्रैक्शन ऑफ C, जितने भी हों सभी का सम क्या आना है, 1 आना है। तो these are about the expression of the concentration of solution। Now we are going to solve some numerical based on the molarity, normality, etc। चलते हैं, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखा जाए, सपोज हियर 68% weight by weight of HNO3 is given and its density is suppose 1.5 gram per liter is given। तो what will be its molarity and molality and mole fraction। molarity and mole fraction सभी चीजें निकाली जा सकती है इसी से। कैसे निकाली जा सकती हैं, तो हम लोग ये यहां पे देखें, जैसे सॉल्यूशन करते हैं हम यहां। तो सपोज करो ये दिया क्या है, 68% वेट बाय वेट ऑफ HNO3 का मतलब, यानी 68 ग्राम ऑफ HNO3 इज गिवन। 68 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का मास कितना है, 100। HNO3 का मास कितना है, 68। यानी वेट ऑफ S, यानी वेट ऑफ HNO3, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, WB लिखते हैं, ये कितना होगा, 68 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, MB जिसको आप कहेंगे, तो HNO3 का देख लें कितना होगा, हाइड्रोजन का 1, हियर इट इज 14, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 मीन्स 48। तो ये कितना हो गया, 15, 48, ये कितना हो गया, 63। ठीक, यानी मॉलिक्यूलर मास भी इसका कितना हो गया, 63। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रहा है, यानी WA प्लस WB दोनों का मास मिला के कितना है, 100 ग्राम। अब हम इसमें सारे सवाल लगा सकते हैं।
लेकिन सबसे सरल फार्मूले के अनुसार अगर हम लोग देखा जाए, पहले मोलैरिटी को ही निकालें। तो मोलैरिटी के लिए हमने कई फार्मूले, 5 फार्मूले बताए थे। सबसे सिंपल वे में अगर निकालना है मोलैरिटी कैपिटल एम को, एक फार्मूला बताया था कि परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन एम बी। ये कर लें, ये कर लेंगे तो परसेंटेज कितना है 68, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 अपॉन 68, तो आंसर हमारा आ जाएगा 15 कैपिटल एम। कैपिटल एम इज 15 मोल पर लीटर। ये एक मेथड वाइज है, हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन किया जा सकता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको अल्टरनेट मेथड से किया जाए, दूसरे मेथड से किया जाए, वो भी किया जा सकता है। तो हम लोग उसको दूसरे मेथड से करते हैं। एक से दूसरे मेथड से भी इसको किया जाए। दूसरा मोलैरिटी से, मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, हम लोग मोलैरिटी का फार्मूला पढ़ते थे WB अपॉन MB। क्या था, वॉल्यूम इन ml अगर करें तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट है, मॉलिक्यूलर मास है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन है। क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन है। तो मास ऑफ सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे, हमको पता है डेंसिटी इज गिवन 1.5 ग्राम पर लीटर, मास इज गिवन 100 ग्राम। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलता था, तो हम लोग कैसे निकालते थे, यहाँ पे निकल जाएगा। क्या था, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहिए तो मास एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.5। इसको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 1000 कर दीजिए इसको, 690 हो जाएगा 10। फिर इसको कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मीन 66.6 के आसपास आ जाएगा। 66.6 क्या हो जाएगा, ml आ गया। ये क्या आ गया, ml। अब इसी को पुट कर दिया जाए, चूंकि वॉल्यूम हमको चाहिए था, वॉल्यूम हमको मिल गया है। अब देख लेते हैं फिर से मोलैरिटी को हम कैसे निकालेंगे। मोलैरिटी हो गया क्या, मोलैरिटी हो गया वेट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ 68, मॉलिक्यूलर मास इज 68, वॉल्यूम इज 66.6 ml है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी हमारा आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 66.6। तो ये भी लगभग आ जाएगा, हमारा वही आंसर आएगा लगभग 15 कैपिटल एम या मोल पर लीटर। ये सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं इसको। मींस ये हमारा था मोलैरिटी। इसी तरह हम लोग मोल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन भी डिटरमाइन किया जा सकता है। उससे पहले हम लोग मोलैलिटी निकाल लें। मोलैलिटी के लिए थोड़ा डिफरेंट है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर kg of solvent, means solvent is taken in per kg। अब यहां नंबर ऑफ मोल्स तो एक ही आ रहा है, पर kg ऑफ सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट को किस में लेना है, पर kg में। यहां पे देखो, ध्यान दो, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का मास कितना है, हमारे पास सॉल्यूशन का WA प्लस WB इक्वल्स टू कितना है 100 ग्राम है, जिसमें से वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 68 यहां से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम, यानी क्या हो गया 32 ग्राम। अब फार्मूला लगा दीजिए मोलैलिटी का ही फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा मोलैलिटी, देखो 68 अपॉन 68, यहां आ गया क्या, मास पर केजी है, मास को इसी को 32, वहां पे क्या कर देंगे 1000। अब इसको काट दीजिए, 1000 अपॉन 32
ये फिर हमारा आंसर आ जाएगा, मोल पर केजी आंसर आएगा। सिमिलरली इसी के सी पोर्शन को करेंगे, मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। अब ध्यान देंगे, मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका मोल्स एनबी तो कितना है, एनबी कितना है 68 अपॉन 68 ही है, यानी 1 है। इसका एनबी कैसे निकलेगा, Na कैसे निकलेगा, वाटर का मास कितना है 32, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी आ गया 68 अपॉन 68, ये कर दीजिए, यहाँ 68 अपॉन 68 कर दीजिए प्लस 32 अपॉन 18 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। यानी यहाँ 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1 हो जाएगा, इसको अपना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी हम देख रहे थे अभी कंसंट्रेशंस कैसे डिटरमाइन करेंगे, यानी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बुक में, ये एनसीईआरटी में भी इस तरह का न्यूमेरिकल मिलेगा, और आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल सीबीएसई मींस बोर्ड पैटर्न के लिए जो बोर्ड में आपके क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक पे, मींस एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी में कभी कभी मोलैरिटी पे और क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी मोलैरिटी इतनी थी, नाउ इट इज डाइल्यूटेड अप टू द 2 लीटर, तो वहां पे आप फिर फार्मूला लगा देंगे, इस यहां तक निकालने के बाद, मोलैरिटी निकालने के बाद m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ये फार्मूला लगा के उस पर निकाल देंगे। मींस इस तरह के सारे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि यही 3 तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं और इस पे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ। ठीक है, ओके, थैंक यू।